Morning, all of you. I hope you all are doing fine in your life, and I expect that you have understood the previous, lecture properly. Or you have, revised them. Okay, so then this chapter, we have already learned about the definition and of growth, development, maturity. So basically, today, what we are going to do, we are going to understand a very important part, that is the development stages. Now let's begin with it. And meanwhile, when I'm teaching you this, I expect you all to be very attentive. देखो बुक के अंदर there are points, ठीक है, but बुक के साथ साथ your focus should be on this mind map. Let me increase the size of this mind map. And ऊपर आपकी बुक है and नीचे ये मेरे notes है ना. तो let's start. सुनो, today we are going to understand human development. So first understand what is human development. Human development is characterized by temporary periods. जब हम बड़े होते हैं तो हमारी लाइफ में क्या आते हैं, टेम्पररी है ना पीरियड्स आते हैं. ओके, ये टेम्पररी पीरियड्स क्या होते हैं, ये एक तरह के क्या होते हैं, ये स्टेजेस होती है हमारी लाइफ की. जैसे कि इन्फेंसी, प्रीनेटल पीरियड. ओके, प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी, then childhood, then adolescence, then adulthood, then old age. So these are temporary periods, and human development is structured around these temporary periods. Every period or every stage has some dominant features. Okay, there are some characteristics in each and every stage which become essential for us to know. And then every stage has a unique leading characteristics, right? Some dominant feature and some leading characteristics. Now what is the difference between these two? When we talk about the dominant feature, we are actually talking about the development, the physical development or the growth. What is the definition of growth? Increase in size, right? And cell division. So dominant feature क्या होते हैं इसमें, लाइक कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है जो बच्चे की हो रही है. एंड लीडिंग करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट में वैसे तो ये दोनों चीज़ें ही आती हैं, बट लीडिंग करेक्टरिस्टिक्स आर बेसिकली एसोसिएटेड विद द बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन, राइट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फीचर, जैसे मैं बोलूँ कि ए पर्सन के फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, दैट मीन आई एम appreciating the girl's hair or the girl's hand, that they are very clean. and तो और कुछ भी फीचर्स हो सकते हैं. तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फीचर. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स, दैट इज पर्सन की, ए पर्सन की या फिर बी पर्सन की करेक्टरिस्टिक्स अच्छी है, एट दैट मोमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्किल सेट, the development, the qualitative aspect of his behavior, which I know because I have compared his behavior, right? Am I making sense? If yes, then do subscribe my channel, and this is the only way you can tell. So now progression and sequence. अब क्या होता है कि in the process of development, there are some sequence. We develop in a manner where we move from fine skill set to grow skill set, where we are moving from small skills toward the big skills, right? Have you heard about cephalocaudal and proximodistal? Okay, cephalocaudal is basically that when a child is born, so his body develop from first his head is developed, and then his entire body is developed. And when we are talking about proximodistals, first he tried to control the big muscles that he has in his body, and then he moved toward this fine muscle. For fun fact, इसको याद रख लो क्योंकि आगे भी ये आने वाला है, and I am going to repeat it, but लिख लेना. नाउ एक सीक्वेंस में चीज़ होती है डेवलपमेंट. आपने जैसे अपने आसपास यू हैव ऑब्जर्व्ड किड्स, राइट? तो पहले वो बच्चे क्या करता है, फर्स्ट वो क्या करता है, अपना सर उठा के देखता है. छोटा बच्चा उसे पेट के बल लिटा देते हैं. फिर धीरे धीरे क्या करने लगता है, वो बैठने लगता है. फिर धीरे धीरे क्या करने लगता है, वो चलने लगता है हाथों और पैरों से, राइट? फिर धीरे धीरे लाइक क्या करने लगता है, वो खड़े होने की कोशिश करता है स्ट्रेट सपोर्ट के साथ, फिर बिना सपोर्ट के साथ. देन ही स्टार्ट सपोर्ट के साथ वॉक करनी शुरू करता है. देन ही ट्राई टू वॉक विदाउट सपोर्ट, और अल्टीमेटली 1 साल बाद वो 1 साल के अंदर अंदर एक बच्चा चलना सीख लेता है, राइट? तो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि बच्चा पहले चलना सीख रहा है ना, फिर सर उठाना सीख रहे हैं ना, ये डिस्टर्ब प्रोसेस तो नहीं हो रहा. तो देयर इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ थिंग.
हाउ द पर्सन अंडरस्टैंड कि क्या सोसाइटी में गलत है क्या सही है। पहले पहले क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे को पनिशमेंट देते हैं, है ना, उसको बोलते हैं कि बेटा ये गलत है ये सही है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा खुद की उससे सोसाइटी को देखे कि सोसाइटी इसको गलत मानती है तो ये गलत है। फिर सोसाइटी ने मुझे गुड बॉय बोला तो ये चीज़ें अच्छी हैं तो आई नीड टू डू गुड बिहेवियर। पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि कभी कभी सोसाइटी भी गलत होती है, मोरालिटी वहाँ पे नहीं होती है, राइट। तो ऐसे ही कुछ स्टेजेस आती है, जैसे पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, राइट। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन अ सिक्वेंशियल मैनर। इंडिविजुअल मूव इन अ सेम ऑर्डर, मतलब पहले हर बच्चा पहले खड़ा होना सीखेगा फिर चलना सीखेगा, है ना। सीक्वेंशियल ऑर्डर में डेवलप होती है चीज़ें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे देयर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। आप ड्रॉ करना पहले ही सीखना चाहते हो, साइकिलिंग करना, दैट इज़ अ चॉइस ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ नॉट द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। दीज आर द पार्ट ऑफ बेसिकली, ये हमारे मेमोरी चैप्टर में आता है, इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, हॉबीज़ के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। ये कोई चीज़ नहीं है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट तो हम मैच्योरेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट की प्रोग्रेस टूवर्ड अज्यूम गोल्स एंड स्टेट, व्हाट डज इट मीन। मतलब क्या होता है कि हमारी लाइफ में ना एक गोल होता है। फॉर एग्जांपल जब हम पैदा होते हैं तो व्हाट इज़ आवर गोल कि हम वन वर्ड सीखें, राइट, हम चलना सीखें। हम पहले बैबलिंग करते हैं, देन वी स्पीक वन वर्ड, है ना। जैसे कि हमें पानी लग रही, प्यास लग रही है तो हम एक वर्ड बोलेंगे अपनी मम्मा को, मम, और वो समझ जाएगी कि बच्चे को प्यास लग रही है, राइट। अगर दो, फिर वो बच्चा दो वर्ड सीखने लगता है, वो बोलता है पानी दे दो, है ना, पार्क चलो, इस तरह के दो वर्ड, टू वर्ड्स स्टेज आती है, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग कि हमारी स्टेज, हर स्टेज के गोल होते हैं। जैसे इन्फेंसी के गोल हैं, प्रीनेटल में कुछ गोल हैं, ठीक है। अभी एडल्टहुड के कुछ गोल हैं, एडोलेसेंस के कुछ गोल हैं। तो मेरे और आपकी लाइफ के गोल है ना अलग अलग है। अब क्या होता है, ये 3 पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर, मेक अ माइंड मैप इन योर नोटबुक एंड सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। एंड आज का लेक्चर मैं थोड़ा लंबा लूँगी क्योंकि आई एम आई वॉन्ट टू क्लियर ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई विल नॉट रश। अगर वीडियो जल्दी देखनी है तो 2x की स्पीड में लगा के देख लो। ओके, नाउ देयर इज नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडिविजुअल वेरिएशन। इंडिविजुअल वेरिएशन क्या होती है कि हर इंसान की लाइफ में ये जो मैच्योरेशन के साथ जो स्किल डेवलप करने का टाइम आता है या फिर कुछ न्यू सीखने का टाइम होता है, उसकी टाइमिंग और रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल सम चिल्ड्रन लर्न्स टू टॉक वेरी क्विकली, बट some children take very long, they take 3 years, some take 2 years. So why is this? क्योंकि टाइमिंग और रेट ऑफ जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है हर बच्चे के लिए। स्किल्स जो होती है वो आसानी से सीखी जाती है एक सर्टेन स्टेज में आने के बाद। मतलब इफ़ यू आर 1 year, ठीक है, यू कांट लर्न, यू कांट डिबेट इन दैट एज। 1 साल की उम्र में आप डिबेट नहीं कर सकते। अब डिबेट की उम्र कब होती है, जब 13 year का होता है बच्चा। सो दैट मीन दैट हर स्किल को सीखने की एक एज होती है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक अ चाइल्ड लर्न अ स्पेसिफिक थिंग बिफोर दैट एज, बिफोर दैट मैच्योरेशन पीरियड, सो क्या होगा, इट विल क्रिएट डिजास्टर इन द पर्सनस लाइफ। सो अगला क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट टास्क। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज डेवलपमेंट टास्क। तो डेवलपमेंट टास्क क्या होता है कि सपोज व्हेन यू आर इन क्लास 8th, so for you at that time maybe social science was difficult, right? For you, certain things were challenging, but as you grow and as you reach grade 10, so maybe when you look back, जब आपने पीछे देखा, उन्हीं चीज़ों को दोबारा देखा, तो वो क्या चीज़ें क्या लगने लगी, आसान लगने लगी। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हर स्टेज की एक डेवलपमेंट टास्क होते हैं। एक डेवलपमेंट टास्क क्या होते हैं, सोसाइटी एक पर्टिकुलर एज में हमसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करती हैं कि हमें वो स्किल्स आनी चाहिए, एंड दीज आर द डेवलपमेंट टास्क। You can read here in your book also and underline this, that it may be noted that certain pattern of behavior and certain skills are learned more easily and successfully during certain stages. इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं या सर्टेन स्किल होती है जो हम आसानी से सीख लेते हैं एक सर्टेन एज में आने के बाद। These accomplishment of a person becomes the social expectation of the stage of development,
और ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है, ये क्या बन जाती, ये जो अकम्पलिशमेंट होती है, ये उस स्टेज की क्या होती है, सोशल एक्सपेक्टेशन होती है, विच पीपल थिंक कि इस उम्र के बच्चे को या इस उम्र के इंसान को आनी चाहिए. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड प्रीनेटल स्टेज. प्रीनेटल स्टेज क्या होती है? Let's understand first the definition, that from conception to the birth of the child, the period is known as prenatal period, when the child is actually in the womb of the mother. So during this period, genetic and environment factor both influence the development of the child. हमें क्या लगता है कि only genetic factors influence the behavior of the development of the child, लेकिन environment, what the mother is eating, what the mother is doing also influence the development of the child. अगर environment अच्छा नहीं होता या फिर genetic कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, so because of both these conditions, the child which will take birth can be mentally retarded. बच्चा MR हो सकता है, राइट. देयर कैन बी रुबेला. रुबेला एक जर्मन मेजल है जो मदर से बच्चे को फैलता है. देयर कैन बी जेनिटल हर्प्स. देयर कैन बी ह्यूमन immunodeficiency virus, because of which the child can get AIDS positive. So these are the things that need to be ensure that both the genetic blueprint and environment has to be perfect. टिपिकली ये पीरियड क्या होता है, 40 वीक्स का होता है, राइट. टिपिकली कितने का होता है, 40 वीक्स का ये पीरियड होता है. दिस यू नीड टू रिमेंबर, 40 वीक्स. टेक वन स्टिकी नोट, राइट ऑन दैट एंड पेस्ट ऑन योर वॉल अंटिल यू रिमेंबर इट. नेक्स्ट इज बेसिकली प्रीनेटल एनवायरनमेंट में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स. Maternal characteristics are those behavior or those daily activities that the mother is doing, because of which the health of the child is ensured. अच्छी हेल्थ भी हो सकती है, बुरी हेल्थ भी हो सकती है. सो बेसिकली फर्स्ट द मदर्स एज हैज़ अ लॉट ऑफ टू डू विद इट. if someone is becoming a mother at the age of 18 and before 18, that is too dangerous for both the mother and the child. And there can be a situation where the child can have issue related to his IQ. उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होगा, राइट. उसको वो परफेक्ट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ विच क्या हो सकता है कि चाइल्ड की लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. So that's why a perfect age which is basically preferable is 16 and above. These ages, there is huge debate on this age, so let's not talk about it. अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन. The a proper balanced diet need to be consumed by the mother. Most of the time we have seen that the food which the mother is consuming has a lot of toxicity in it because of environment. There can be mercury. तो एक है ना, मतलब केस है, राइट. एक डिसऑर्डर है, दैट इज मीना मार्टर डिसऑर्डर. सो मीना मार्टर डिसऑर्डर इज बेसिकली द मर्करी कंटामिनेशन इन दी फिशेस. एंड द पीपल हु ईट दोज फिशेस क्या होते थे, उनको मीना मार्टर डिजीज हो जाती थी. तो बेसिकली क्या देखा गया कि द मदर हु वर कंज्यूमिंग दीज फिशेस विच हैज़ हाई लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी in terms of mercury and other toxic substances, they were resulting in the abortion, or the mental, the child to get some problem, right. तो ऐसी ऐसी चीज़ों को लाइक द मदर शुड इंश्योर दैट उसके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो, राइट. पॉल्यूशन फ्री हो एनवायरनमेंट. उसके बाद देयर इज़ अनदर थिंग, दैट इज़ द इमोशनल स्टेट. Most studies have revealed that if during this prenatal period, if the mother is happy, she is feeling nice about herself, so because of that what will happen, that the child which will grow will develop into a healthy child. Uske there will be no complications. Then next is basically disease. I've already told you about rubella, genital herpes, HIV. Rubella क्या है, जर्मन डिजीज है. चलो अब एक है ना, ये टेरेटोजन है. टेरेटोजन इज अ वर्ड विच लुक्स वेरी स्केरी, बट एक बार है ना इस वर्ड को आप देखो. आई हैव रिटन अबाउट दीज डिजीजेस. तो यहाँ पे देखो, टेरेटोजन क्या होता है, दीज आर एनवायरमेंट एजेंट दैट कॉज डेविएशन इन नॉर्मल प्रीनेटल डेवलपमेंट. मतलब क्या है इस चीज़ का,
कभी कभी एक बच्चे जो उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट होनी चाहिए एट द प्री नेटल पीरियड ड्यूरिंग दिस 14 वीक टाइम, द चाइल्ड शुड हैव पर्टिकुलर सेट्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि उसकी स्किल्स प्रॉपरली, उसके ईयर्स डेवलप हो जानी चाहिए प्रॉपरली, राइट, उसकी नोस्ट्रल डेवलप हो जानी चाहिए. बट वट हैपन दैट सम टाइम बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट एजेंट लाइक पॉल्यूशन की वजह से, या फिर एक्सरेज की वजह से, राइट, या फिर मदर्स की ड्रग या सब्सटेंसेस कंज्यूम करने की वजह से क्या होता है कि द चाइल्ड हैव सम सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस. सो दिस इज बेसिकली टेराटोजन. टेराटोजन इज द एनवायरमेंट. ओके. अब एज एन साइकोलॉजिस्ट what things we need to, why we are learning about it, we are not in biology, why we need to even see the prenatal period, because I have seen multiple instances when the child basically has mental problem. जैसे कि ऑटिज्म है, तो ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. इन दैट बेसिकली चाइल्ड हैज़ प्रॉब्लम इन सोशल इंट्रैक्शन. तो उसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, बट कुछ टाइम के बाद क्या होती है कि उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है, ठीक है. एंड बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि बच्चा पैदा होने के बाद रोता नहीं है ना, तो जिसकी वजह से उसको मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता. तो ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए. एंड इफ वी विल नो कि हाउ टू प्रिवेंट इट, so might be we will able to prevent, spread awareness in our surrounding. There are multiple cases when the pregnant women are basically, they have a lot going on in their life, personal life, because of which उनकी उनके बच्चों में कॉम्प्लिकेशन हो जाती है. फिर पहले तो उनको सफ़र करती है, फिर पूरी लाइफ भी वो सफ़र करती हैं. सो दीज आर द अवॉइडेबल थिंग्स दैट वी कैन अवॉइड. और पर्सनली भी इन चीज़ों को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Now moving ahead, there's this next topic. I hope the prenatal period is clear. I've explained the stage very perfectly to you. I don't think that you might be having any doubt in this. Now let's focus on infancy. What is infancy? Okay. हमारे लाइफ में हमारे सबसे तेज जब ब्रेन डेवलप होता है ना, वो यही स्टेज होती है. मतलब एक रैपिड डेवलपमेंट. आप सोच सकते हो कि अगर आप देखो आपके पिछले साल के अंदर आपकी ब्रेन कितना डेवलप हुआ है, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट कितनी हुई, हाइट कितनी डेवलप हुई है, नहीं. लेकिन एक छोटा बच्चा 1 साल में इतना छोटा सा पैदा होता है, फिर 1 साल बाद आप देखोगे इतना टॉल हो गया ये, राइट. 5 साल के आप अंदर देखोगे तो चाइल्ड इज ग्रोन अप. He can speak fluently, he can talk, he can run, he can climb stair, he can try, he is trying to do his things on his own. So during this period, during the first 2 years basically, the fastest development at an amazing rate is happening. And this is something which fascinates me. You have already read, you already know the part of brains. और if you don't know, I'll take another short video on that and I'll tell you. उसको देख लेना. So basically क्या होता है कि we all जब हम पैदा होते हैं, right, तो पैदा होने के बाद there are certain challenges around us. हमें एक भाषा सीखनी होती है, चलना सीखना होता है, एक न्यू से वर्ल्ड में आगे जहाँ पे हमें पता नहीं है कि what is नेक्स्ट क्या होने वाला है. हम ऑब्जर्व करते हैं. वी नीड अ सपोर्टर. दैट्स वाई वी आर टू मच डिपेंडेंट ऑन आवर मदर. और इसीलिए देयर इज एन अटैचमेंट थ्योरी ऑल्सो, जो इस पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. देयर इज थ्योरी रिलेटेड टू प्याजे ही, बहुत सारे लोग हैं ना. मैं अभी बाद में बताती हूँ, चलो उसके बारे में. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द पीरियड ऑफ रैपिड डेवलपमेंट. हमारे ब्रेन के अंदर ना न्यूरल कनेक्शंस होते हैं जब हम पैदा होते हैं, राइट. व्हेन वी आर बॉर्न वी हैव सम न्यूरल कनेक्शन in our brain, but these neural connection developed at an incredible rate when we are grown as a child. Now moving ahead, हमारे we all know that we are born with brain cell, right? They are already there, but when these neural connection they develop, only then our mind starts to function. Another thing is that when an infant is born, there is a survival instinct. For example, when a child is born, when बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है. Now most of the people think that वो रोना जो है that is voluntary क्योंकि बच्चा आया है, but नहीं.
दिस इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि व्हेन वी आर बोर्न देयर इज टू मच फ्लूइड इन आवर ईसोफेगस, और हमारी जो ब्रीथिंग हमारी जो नोज होती है लाइक, तो उसके अंदर है ना देयर इज दिस फ्लूइड फिल, एंड व्हेन द चाइल्ड क्राइज तो बेसिकली क्या होता है, वो फ्लूइड क्लियर होता है एंड द बच्चा फिर उसी के बाद जो बच्चा होता है ही कैन एक्चुअली ब्रीथ. So what is this? This is a survival instinct. At this stage during infancy, the child has basically survival instinct. For example, there are certain involuntary movement, as you can see in your book also. First is rooting. It means that whenever you will touch the cheek of the child, he will open his mouth. Okay. Second is moro, like whenever there will be a loud noise, तो बच्चे क्या करेगा, एकदम से अपने हाथों पैरों को ना बाहर की तरफ फेंकेगा और एक मतलब एक तरह से वो कांप जाएगा, है ना. तो दिस इज मोरो, दिस इज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट. नेक्स्ट इज बेसिकली ग्रास्प. ग्रास्प क्या होता है, इफ यू विल प्रेस द पाम ऑफ द बेबी, सो ही विल फोल्ड हिज आर्म, अपने क्विकली ही विल फोल्ड हिज पाम एंड ही विल ग्रास्प योर फिंगर. So this is basically a survival instinct. And Babinski is what, that when the bottom of the baby's foot is stropped, the toes fan out and then curls. लेकिन ये स्किल्स है ना ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ये डिसअपियर हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल रूटिंग 3 to 6 month में डिसअपियर हो जाता है. मोरो डिसअपियर फ्रॉम 6 to 7 month. ग्रास डिसअपियर फ्रॉम 3 to 4 month. एंड बेबिन्सकी डिसअपियर फ्रॉम 8 to 12 month. Now what is happening, that these survival instinct basically works during the first 1 year, which mean that during the first year the God has created us in such way that we able to survive. After that most of our activities, involuntary activities, turns into voluntary activities. Okay, so now they are talking about these reflexes only, that reflexes क्या होते हैं, these are adaptive mechanism. जहाँ जब हम पैदा होते हैं तो इस दुनिया में हमें अडाप्ट करने के लिए ये रिफ्लेक्सेस का भेजा गया है. ऑटोमेटिक सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज, यू नाउ नो रूटिंग, मोरो, ग्रास, बेबिन्सकी, राइट. बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे मोटर डेवलपमेंट के. ओके जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, रिफ्लेक्सेस आर नॉट जस्ट दैट ड्यूरिंग द इन्फेंसी. पियाजे ने भी कुछ चीज़ें बताई हैं. आई विल टेल यू दैट इन टुडेज लेक्चर. नाउ लेट्स मूव अहेड, दैट हमारी लाइफ के अंदर है ना ये रिफ्लेक्सेस जो अभी हमने पढ़े हैं ये कुछ टाइम के लिए परसिस्ट करते हैं, राइट. मोरो कितने, रूटिंग कितने तक, 3 to 6 month. मोरो 3 to 6 month. ठीक है, बेसिकली 3 to 6 month ही है, या फिर 6 to 7. मोरो क्या होता है 6 to 7 तक करता है, मतलब 7 साल की उम्र तक ये रहता है. ठीक है. अब वाई देयर इज दिस टाइम 3 to 6, 6 to 7, राइट, 3 to 4, 8 to 12, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दीज मंथ्स. क्यों कर रहे हैं हम इनके बारे में बात, क्योंकि ये जो टाइम स्पैन है ना, आप देख रहे हो किसी में ये डेवलप होता है जल्दी, किसी में कम होता है. और अभी हमने जब ह्यूमन डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, वी लर्न दैट कि ह्यूमन डेवलपमेंट अलग अलग रेट पे होती है, रिमेंबर. सो कीप दैट इन योर माइंड एंड डू रिवाइज दिस, आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेंसरी एबिलिटी बच्चों के अंदर. ये बहुत ही फैंटास्टिक है, तो मैंने मतलब इसको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी. मैं इसको मैंने पढ़ा भी काफ़ी अच्छे से था इसको. सो बेसिकली चलो पढ़ते हैं एक बार. तो सबसे पहले लाइक व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न, थोड़ा समझना. तो ही कांट सी थिंग्स क्लियरली. उसको क्या करता है, उसको ब्लर ब्लर सा दिखता है. व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न उसको पूरे पूरे सारे के सारे रंग कब दिखने लगते, 3 महीने के बाद. तो मतलब 1 से 3 महीने तक बच्चा से रेड कलर को अलग कर सकता है और वाइट कलर को अलग कर सकता है. बाकी उसको सारे कलर दिखते ही नहीं हैं. if you are if the baby is born and he is just 1 month old, and if you are showing the baby different color and you are happy कि देखो ये देख रहा है, तो you are playing with your mind only. he can't distinguish between the colors. 3 month के बाद बच्चा कलर देखेगा एंड वो खुश भी होता है फिर कलर देख के. जब उसे आप अलग अलग कलर्स दिखाओगे ना 3 मंथ के बाद, एक बार देखना कि बच्चा खुश हो जाता है. सो बेसिकली क्या है कि विजन उसका क्या होता है, पहले तो ब्लर होता है, धीरे धीरे इंप्रूव होने लगता है. ठीक है, 1 साल के बाद उसका एकदम 20/20 का विजन हो जाता है. देन ही कैन सी द फार अवे थिंग्स एंड ही विल एंजॉय इट. ओके नाउ अंडरस्टैंड. थोड़ा सा हम ये समझेंगे. देखो यहाँ पे हमने क्या समझा
कि जब बच्चा पैदा होता है तो ही कांट सी थिंग्स क्लियरली, ठीक है। ही बेसिकली सी द थिंग क्लियरली आफ्टर 3 मंथ उसको बच्चे को कलर दिखने लगते हैं। एंड फेस का उसको स्पेसिफिकली पता नहीं होता है कि अभी मतलब स्पेसिफिकली फेस प्रेफरेंसेस को देखने के लिए ही नोज व्हाट हाउ टू डिस्टिंग्विश रेड एंड वाइट। और विजन उसका शुरू शुरू में क्लियर नहीं होता, आफ्टर 1 ईयर 20 और 20 विजन डेवलप हो जाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द हियरिंग स्किल ऑफ द चाइल्ड, तो ही विल परफॉर्म लोकलाइजेशन। व्हाट इज लोकलाइजेशन? He can hear perfectly, इसीलिए he was showing this moro instinct, and whenever he will hear the voice of his or her mother, तो what the child will do that, वो आइडेंटिफाई कर लेगा मेरी माँ कहाँ पर है ना। अदर सेंसेस जैसे टच पेन वगैरह नॉर्मली बच्चे में प्रेजेंट होती है। when we are talking about the motor development, तो पहले पहले क्या होता है, when the child is born he basically performs the reflexes like automatic behavior, जैसे blink वगैरह करना या कफिंग करना, तो he doesn't know कि वो ये सब कर रहा है, फिर yawn करना, राइट। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं ये चीज़ें डिसअपियर होने लगती है, जैसे कि 6 मंथ में, 3 मंथ में, 7 मंथ में, राइट। क्यों ऐसी जो रिफ्लेक्सेस होती है डिसअपियर होती है? बिकॉज द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड इज इन प्रोग्रेस, इट इज़ डेवलपिंग, फिजिकल डेवलपमेंट इज इन प्रोग्रेस। तो बच्चा बच्चा तो नहीं रहेगा, द चाइल्ड नीड्स टू ग्रो, द मसल, द नर्वस सिस्टम ऑल नीड्स टू डेवलप, राइट। द फाइन मोटर skills need to develop, and for that the voluntary action soon and later converts into the involuntary action soon and later converted into voluntary action। reflexes क्या होते हैं? involuntary actions होते हैं, ओके। अब क्या होगा, पहले पहले जो बच्चा है व्हेन मोटर डेवलपमेंट हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, तो फर्स्ट ही ग्रास्प, जब आप उसको उसके हाथ में आप अपनी फिंगर दोगे तो इनवॉलेंट्री बच्चा क्या करेगा, रिफ्लेक्स की वजह से ग्रास्प कर लेगा। पर धीरे धीरे क्या होगा कि वही जो ग्रास्प करने की एबिलिटी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इट विल डेवलप इनटू अ वॉलेंट्री एक्शन। तो अभी मैं ना कुछ टर्म्स यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। ये टर्म्स है ना पियाजे ने दी थी, ठीक है। दीज टर्म्स आर बीन गिवन बाय पियाजे। एक बार इस टर्म इसको पढ़ो, आपको लगेगा कि यार ये तो पियाजेट लिखा है ना, पियाजेट, पर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पियाजे, ओके। इसको पियाजे बोलना, इफ़ यू आर इन साइकोलॉजी, भाई पियाजेट मत बोलना, भगवान के लिए पियाजे बोलना, एंड कीप दिस इन योर माइंड, ही इज पियाजे। नाउ कैन वी मूव अहेड? तो पियाजे ने क्या बोला था, फर्स्ट देयर आर रिफ्लेक्सेस, ओके, देन देयर इज प्राइमरी circular reaction, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। देखो ये चीज़ें ना अभी कोई नहीं पढ़ाता भाई, बिकॉज आई एम टीचिंग यू दिस, क्योंकि ताकि आप पढ़ लो ये चीज़ें। व्हेन यू विल राइट दिस टर्म इन योर एग्जामिनेशन ना, यू आर गोइंग टू गेट एडवांटेज, बिकॉज द अदर डजंट नो, योर टीचर्स नो, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है भाई इसके लिए, ठीक है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन फिर होता है, अभी मैं बताऊँगी, जस्ट कीप राइटिंग विद मी, ओके। देन क्या होता है, देन देयर इज कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ओके। शॉर्ट में लिख दो, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, समझ जाना, ठीक है। ये ऊपर वाला ही है, SCR। एंड देन देयर इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, राइट। ये तो आपने वर्ड सुना है अपनी बुक में, है ना, पहले वाले नहीं सुने होंगे। इट्स ओके, इट्स फाइन नॉट टू नो, ठीक है, नहीं पता होते, मुझे भी नहीं पता थे, मैंने भी 11th में पढ़े थे। तो व्हाट आर रिफ्लेक्सेस यू ऑल नो, दीज आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। हमें नहीं पता होता, हम बस कर रहे होते हैं, राइट। हमारे हाथ में हम छोटे होते हैं, हमारी उंगली पे कोई मतलब पाम्स में कोई अपनी फिंगर रखेगा, द पर्सन विल प्रेस आवर पाम्स एंड वी विल क्लोज आवर फिस्ट एंड वी विल ग्रास्प द फिंगर ऑफ द पर्सन, राइट। दीज आर रिफ्लेक्सेस। तो हमारे जो मोरो था, रूटिंग था, ग्राफ्स था, राइट, दीज ऑल वर द रिफ्लेक्सेस हेयर, है ना। बेबिन्स्की, मुझे बेबिन्स्की है ना, पर्सनली बेबिन्स्की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था जब मैं तब उसमें थी, बट नाउ आई नो दैट द स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू टीच द चाइल्ड दैट हाउ टू फोल्ड हिज फिंगर्स, जो उसके टोज है उनको कैसे फोल्ड करना है ना, उनका कैसे यूज़ करना है, बेसिकली इट्स टू डेवलप द फीट ऑफ द चाइल्ड। तो बेबिन्स्की। नाउ अब इसको थोड़ा ना आराम से फुर्सत के साथ समझना, नो नीड टू रश, अच्छे से नोट्स बनाना। Reflexes is what? Reflexes, involuntary action. प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन क्या होता है? प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन होता है कि एक टाइम के बाद जो बच्चा है वो पहले क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, अपनी फिस्ट को बंद करेगा,
है ना। फिस्ट को बंद करेगा फिर खोलेगा, बट धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो इंटेंशनली बंद करनी और खोलना शुरू कर देगा। इंटेंशनली क्या करेगा, अपना सर उठा के इधर देखने लगेगा। अब एक दिन क्या होगा, उसने वो गलती से, मतलब पहले तो अपना हाथ वो इनवॉलेंट्री हिला रहा था, अब एकदम से उसने अपना हाथ हिलाया ना, तो चाहे अब बच्चे को, बच्चा छोटा है, पहली बार उसने अपना हाथ हिलाया है तो उसको मज़ा आ गया, राइट, प्लेजर मिला बच्चे को। Now he will intentionally move his hand to take, to seek that pleasure again, वो मज़ा दोबारा लेना चाहता है। तो दिस इज प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, राइट। एक बार दोबारा समझो, बच्चे ने अपना पैर किक मार दी गलती से। अब बच्चे को क्या लगा कि ये क्या हुआ, मैंने तो अपना पैर हिलाया, दोबारा हिला के देखता हूँ। तो बच्चे ने क्या किया, दोबारा इंटेंशनली किक किया। नाउ इससे क्या हुआ, द बच्चे को प्लेजर मिला, ही द किड इज रियली हैप्पी, है ना। किक करके ही इज वेरी हैप्पी, ही इज enjoying that. So this is primary circular reaction. नाउ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। अब सपोज बच्चे ने पहले अपना हाथ हिलाया था, उसे मज़ा आने लगा, पर धीरे धीरे नाउ ही इज़ यूज टू इट। अब व्हाट विल हैपन कि हैव यू सीन झुनझुना देखा है आपने, वो बचता है जो बच्चे के हाथ में दे देते हैं, तो बच्चे को क्या करेंगे, उसके हाथ में वो दे देंगे। नाउ द चाइल्ड विल मूव हिज हैंड विद दैट, एंड उसको क्या लगेगा, अरे ये तो आवाज़ कर रहे हैं ना, आवाज़ कर रहे हैं तो he'll feel happy. Now he'll perform those activity with voluntary से involuntary में convert हुआ, but with an object. Now he's trying to use the object. He's learning how to use the objects, and he is taking pleasure in doing that. उसको repeat करके. Now there is secondary circular reaction. Secondary circular reaction क्या होता है, I told you. बच्चे ने पहले किक किया था, नाउ बच्चा क्या करेगा, उसके आगे हम बॉल रख देंगे, ठीक है। नाउ ही विल अगेन व्हेन ही विल किक एंड ही विल से कि ठीक है, ये तो भी हिली, बॉल हिल गई, है ना। अब बच्चा चलना नहीं सीखता इस टाइम पे, वो लेटा हुआ है, उसके साइड में बॉल है, उसने जस्ट इसी साइड में लेट के किक मारा है, तो ही विल फील हैप्पी कि देखो मैं तो ये किया, ही विल फील हैप्पी। तो दिस इज सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। नाउ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। अब बच्चे ने क्या किया, 2 साल के अंदर धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा ना क्रॉल करने लगा है, उल्टा लिटा दो तो क्रॉल करता है, तो उसका झुंझुना थोड़ा ऊपर रख दिया। अब वो क्या करेगा, मुश्किल से वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ जाएगा, उसका अपना वो झुंझुना लेगा और उसे बचाएगा। नाउ ही इज डूइंग अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज टू परफॉर्म that task and seek pleasure. So this is coordination of secondary circular reaction. एंड फिर आती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, लिसन, पहले साल में क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि वो बच्चे को आप झाँक नहीं करते, देखा होगा ना, मम्मा क्या करेगी, उसके आगे पर्दा लगाएगी, उसके पीछे चली जाएगी। अब बच्ची को क्या लगता है, बच्चे को लगता है कि मम्मा इस दुनिया में है ही नहीं, वो इनविजिबल होगी, एंड व्हेन शी सडनली कम, तो वो हैरान हो जाता है कहाँ से आई, है ना। बट धीरे धीरे ये चीज़ चली जाती है और बच्चे को समझ आ जाता है कि दूसरा ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। तो ये जब बच्चे को लगता है ना, कि बच्चे को जब समझ नहीं आता कि एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे को कवर कर लिया, तो दिस इज ऑब्जेक्ट परमानेंट, उसे लगता है चली गई मम्मा, राइट, एंड तभी वो इतना खुलखिला के हंसता है, राइट। तो ये चीज़ें क्या होती है, दीज आर गिवन बाय पियाजे, दीज आर सम ऑफ द स्टेजेस। अब पढ़ो इस चीज़ को, यहाँ पे लिखा है ना कि पियाजे ने क्या किया है कि इन्फेंसी को है ना, मतलब वो बोला है कि पहला साल और दूसरे साल में कन्वर्ट कर दिए। सबसे पहले सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर मतलब 2 से 0 to 2 मंथ्स तक, ये मंथ है भाई, यहाँ पे ईयर्स कहाँ से आ गया, ये ईयर्स नहीं है, ये मंथ है, ठीक है। पहले 2 महीने होता है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर में नहीं ईयर्स ही है, सॉरी ईयर्स ही है, हाँ ईयर्स ही है। ये पहले 2 साल होता है सेंसरी मोटर। आई वॉज अ लिटिल बिट कन्फ्यूज, ओके पार्डन दिस, मैं थोड़ा है ना सेंसरी मोटर और इसमें अभी हो गई थी। देखो रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, पहले 2 महीने चलते हैं, है ना। और ये पूरा का पूरा टाइम क्या है, ये पहले 2 ईयर्स का है, और ये पीरियड जो है, सारी की सारी चीज़ें ना इसी में ही होगी। रिफ्लेक्सेस, ये जो स्टेजेस मैंने बताई है ना, दीज आर द पार्ट ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर। तो फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ द चाइल्ड लाइफ बेसिकली पियाजे ने क्या किया, 4 स्टेजेस दिए, और भी इसने चीज़ें कॉन्सेप्ट बताए हैं, आई टेल यू दैट, अभी बता देती हूँ। बेसिकली ही गिव 3 टर्म्स, एक बार उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट ही टॉक अबाउट assimilation. Okay, assimilation is what, accommodation, ठीक है, accommodation,
लेट्स अंडरस्टैंड ये क्या होते हैं। और उससे पहले हम एक वर्ड सीखेंगे, दैट इज स्कीमा। मेक नोट्स अलॉन्ग विद मी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पियाजी। अब पियाजी की स्टेज हम सीखने वाले हैं। व्हाट इज एसिमिलेशन, अब थोड़ा समझो, एग्जाम्पल से समझेंगे। देयर इज दिस चाइल्ड, ठीक है, उसने क्या किया, वो अपनी मदर के साथ घूमने जा रहे हैं। ही सॉ अ डॉग फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, राइट। तो वो अपनी मम्मा से क्या पूछेगा, मम्मा ये क्या है ना। तो उसकी मदर क्या बोलेगी, देखो दिस इज़ अ डॉग, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है बट ठीक है, दिस इज़ अ डॉग, ठीक है। एंड द चाइल्ड विल नोट कि ठीक है, 4 लेग्स, एक पूँछ है, उसके 2 ईयर्स हैं, ठीक है। और उसको क्या कर लेगा, इस इंफॉर्मेशन को वो क्या कर लेगा, अपने ब्रेन में स्टोर कर लेगा। सो दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्कीमा, okay. Remember this word that we store the information in our brain in schema, and we will learn the definition later of schema, it will come. So this is when we store, the information in our mind for the very first time. जब हम information को store करते हैं, that is assimilation, right. अब assimilation में और भी एक चीज़ है कि now the next time when the child will see the cat again, dog again, sorry, सो ही विल सी कि ठीक है, 4 legs है, 1 पूछ है, इट्स अ डॉग। अब वो अपनी मम्मा के साथ घूमने जा रहा है दोबारा से, एंड ही विल कॉल अ डॉग। सो दिस वॉज ए प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। सो वेन ही सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्कीमा, this is also assimilation based on the present information that he has, okay. Now let's understand what is accommodation. Accommodation क्या होता है। नाउ बच्चा क्या कि एक दिन दोबारा उसकी मॉम उसे वॉक पे लेके गई अपने साथ शाम को, एंड उसने क्या करा, कैट को देखा, 4 लेग 1 टेल कैट को उसने क्या बोल दिया, डॉग। उसने बोला डॉग। अब उसकी मम्मा कही नो, तो उसकी मम्मा से पूछेगा फिर व्हाट इज दिस, ये क्या है। उसकी मम्मा उसको बताएगी दिस इज नॉट डॉग, दिस इज कैट, राइट। सो ही वॉजेंट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हिज ओन। उसको वो एग्जिस्टिंग जो स्कीमाज उसने स्टोर करे थे उसके बेसिस पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, जिसकी वजह से देयर वॉज डिसऑर्गेनाइजेशन, है ना, देयर वॉज डिसऑर्गेनाइजेशन। रिमेंबर, इसको याद रखना, देयर वॉज डिसऑर्गेनाइजेशन एंड नाउ ही विल चेंज द स्कीमा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट व्हेन ही विल मॉडिफाई द स्कीमा, जब वो इस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर लेगा, एंड ही विल चेंज द नेचर ऑफ द स्कीमा, कि डॉग और कैट में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज accommodation. And now the next time when he will call the cat, again it's a simulation. But अब क्या करेगा, when he will see a big cat is a lion, तो he'll get confused, he will call lion a cat. फिर दोबारा से there will disorganization, again he will accommodate. So ये क्या प्याजी ने कहा कि we keep interacting with the environment and we learn things. हम environment के साथ interact करते हैं, हम इन चीज़ों को सीखते हैं, और ये अकोमोडेशन और एसिमुलेशन का प्रोसेस चलता रहता है। दिस एसिमुलेशन, दिस डिसऑर्गेनाइजेशन, दिस अकोमोडेशन, दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू हिम। मेनली उसने 4 स्टेजेस तक ही बताया है, वैसे तो एडोलेसेंस तक ही बताया है। ही कवर इन्फेंसी, ठीक है, चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, ये 4 स्टेजेस के उसने नाम दिए हैं। तो इन्फेंसी को उसने बोला है सेंसरी मोटर स्टेज। यू नीड टू रिमेंबर द नेम, आई कांट हेल्प इट, एक स्टिकी नोट्स बनाओ, सामने लगाओ, रिवाइज इट। दिस इज द मैनर हाउ यू शुड अप्रोच दिस प्रॉब्लम। तो इन्फेंसी को व्हाट डज ही से, उसने इन्फेंसी को बोला सेंसरी मोटर, दिस इज फ्रॉम 0 to 2 years, एंड दीज आर द सब स्टेजेस, रिफ्लेक्सेस, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, दीज आर द सब स्टेजेस, राइट. Then there is this pre-operational stage. It is from 2 to 7 year. In this, what will happen in the pre-operational stage. Let's understand this. देखो 2 टर्म होते हैं, एक होता है एनिमिज्म, ठीक है, और एक तो रोल प्ले। इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके जो चाइल्ड होता है वो क्या करेगा, वो सीखेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद एनिमिज्म. एनिमिज्म इज व्हाट? The child thinks that each and every object around him or her has life. For example, उसे लगेगा ये डॉल जिंदा है, इसमें लाइफ है, वो उससे बात करेगा, उसके साथ खेलेगा। तो 2 to 7 years तक द चाइल्ड विल इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, मतलब ये
पहले पहले होता है, 2 to 5 होता है जनरली, धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाता है। बट बच्ची को लगता है कि जिंदा है, डॉल जिंदा है, टॉय जिंदा है, इसलिए दे फील हैप्पी जब वो उनको टॉयज के साथ बिठा देते हैं, दे इंजॉय दैट। उनको लगता है कि वाओ व्हाट इज दिस, है ना। जैसे आप अपना ध्यान रखते हैं, ऐसे वो उन डॉल्स का ध्यान रखते हैं बच्चे। मूविंग अहेड, लेट्स अंडरस्टैंड रोल प्ले क्या होता है नाउ। इन दिस स्टेज बेसिकली द चाइल्ड ट्राई, वो खेलता है मतलब गेम ऐसे जहाँ पे रोल प्ले हो। फॉर एग्जाम्पल वो अपनी मदर की एक्टिंग करेगा, फादर की एक्टिंग करेगा, घर घर खेलेगा। तो इस तरह के गेम्स खेल के वो रोल सीखते हैं सोसाइटी में। तो एक तरह से सोशल डेवलपमेंट होती है इन प्री ऑपरेशनल, है ना। तो दिस इज द मैनर दैट हाउ ही लर्न थिंग्स इन द प्री ऑपरेशनल पीरियड। यहाँ पे पढ़ो। First sensory motor 0 to 2 years, and you can see in your book. Infant explore the world by coordinating sensory experience. अब मैंने बताया था ना, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रखी है इन्होंने, कोऑर्डिनेटिंग ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस, सेंसेस से मज़ा ले रहा है वो, हाथ को हिला रहा है, राइट। फिजिकल एक्शन के साथ वो ही इज़ इन्जॉइंग, राइट, एक्सप्लोर कर रहा है अपने वर्ल्ड को। प्री ऑपरेशनल क्या होता है, सिम्बॉलिक थॉट डेवलप हो जाती है। सिम्बॉलिक थॉट्स का मतलब वो जिस चीज़ को देखेगा उसके लिए वही सब कुछ है। ही वॉन्ट आस्क क्यों वाले क्वेश्चन शुरू शुरू में। ही विल आस्क ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। उसको वो कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि ये क्यों है, बट ही विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रीज़न एट दिस एज, राइट। अभी हमने पढ़ा था ना डेवलपमेंट टास्क के बारे में कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है बच्चा नहीं सीख पाता। देन देयर इज दिस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब क्या होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, नाउ लॉजिक विल कम इन हिज लाइफ। If the child around you is 7 to 8, 11 year old, and if he is talking, in a foolish manner, don't underestimate that person. He has developed logic or she has developed logic. The person knows कि सोसाइटी में क्या हो रहा है इस टाइम पे. He is mentally aware. और जनरली हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं ना, जो हमें अभी याद है, मेनली हम इसी स्टेज के बाद याद रहते हैं, ठीक है। तो नेवर अंडर एस्टिमेट अ चाइल्ड एट दिस एज, 7 to 11 year. टॉक टू हिम एंड नो कि आप क्या बोल रहे हो, कुछ भी मत बोल दो ऐसे ही। दिस इज एडवाइस टू ऑल दोज स्टूडेंट्स जो बस में ट्रेवल करते हैं एंड दे आर वेरी नॉटी विद द 7-year-old or 8-year-old kids. It's a genuine advice. You are spoiling your relation. The child eventually has to grow up. Now the child can logically reason कर सकता है वो. अब what will happen थोड़ा सा समझो. Concrete things are like this कि suppose if you are explaining water cycle to the child at this age, आपने क्या किया, इमेजेस ड्रॉ करी, दिखाया, देखो पानी ऊपर जा रहा है, क्राउड बन रहा है, वीडियोस दिखा दी। तो बच्चा क्या करेगा, वीडियोस से ना बहुत जल्दी सीखेगा। एंड आज के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, 7 to 11 year के बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है, दे नो थिंग्स, राइट। तो वाई दे नो थिंग्स, हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ कि उन्हें क्यों पता होता है भाई इन चीज़ों के बारे में। Why the child knows about it? Because अब वो child जो है वो वीडियो देख रहा है अपने फ़ोन में, वो इंटरेक्ट कर रहा है। There are so many visual things around the child that the concrete memory is helping the child to understand. When he's operating the phone, why बच्चे को क्यों जल्दी आ रहा है फ़ोन चलाना, they are when the child are born, वो बहुत क्विकली सीखते हैं जो भी चीज़ सीखते हैं। कोई मतलब 3-4 भाषा सिखा देते कुछ कुछ तो 0 to 5 year के बच्चे को। They can even remember 10 languages. They can learn, they can speak fluently if you're teaching them 10 language so early. So these are some specific things that you should know. अब क्या होगा जब 7 to 11 year को ओल्ड बच्चा होगा, he knows so many things क्योंकि there is television, everything is available online, right? So ये होता है। एक है ना यहाँ पे, एक है ना रिवर्सिबल कुछ चीज़ होती है, मैं आपको एक बार वो बताती हूँ। अब पहले जब बच्चा है ना इसमें स्टेज में था प्री ऑपरेशनल में, सपोज आपने क्या किया, एक लंबा ग्लास लिया और एक चौड़ा ग्लास लिया, ठीक है। दिस इज़ लॉन्ग ग्लास, एक्चुअली ये बिग है, और ये बच्चे के लिए स्मॉल ग्लास है। व्हेन ही इज़ इन प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 साल के बच्चे को नाउ यू आर गिविंग अ मिल्क और वो इतना भरा हुआ है ग्लास में, तो बच्चे कहेगा नहीं मिल्क को कम करो। एंड नाउ आप क्या करोगे, चौड़ा सा मग लोगे और सेम सारे के सारा मिल्क इस ग्लास में क्या करोगे, पोर कर दोगे और बच्चों को दोगे, तो ही विल थिंक देखो कितना कम मिल्क हो गया। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जो पहले प्री ऑपरेशन में डेवलप नहीं होता, बट इट विल डेवलप इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब बच्चे को पता चलने लग जाएगा।
अगर आप बच्चे को क्या करोगे, कैट बना के दोगे और उसी क्ले को अगर आप उसे स्नेक बना दोगे, तो पर्सन नोस कि वो क्ले की वॉल्यूम सेम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, लेकिन पहले वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल क्या है, द एडोलेसेंस कैन अप्लाई लॉजिक मोर, अब वो क्या करेगा, लॉजिकली सोचने लगेगा। एंड एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, मतलब कोई भी सिचुएशन होगी पर्सन सोचेगा शायद ऐसा हुआ होगा। अब ये शायद वाली चीज़ है ना 11 से 15 साल में डेवलप होती है। अगर आपके फादर इसे देखो, पहले क्या होता था कि आपको 11 साल से पहले इफ़ योर फादर इज़ डूइंग अ डिस्टेंट जॉब एंड वो लेट आ रहे हैं, तो बच्चे को पता नहीं चलेगा, ठीक है। बट क्योंकि वो अब क्या करेगा, लॉजिकली सोच रहा है कि नाउ टुडे द फादर ये ज़्यादा लेट हो गया, ही विल थिंक, वो सोचेगा शायद से, जो अगर रेल ट्रेन से ट्रेवल करते हैं कि शायद ट्रेन का टाइम चेंज हो गया हो या फिर कुछ डिले हो गया हो, राइट, किसी ने चेन पुल कर दिया हो, तो दीज थिंग्स, दीज टाइप ऑफ लॉजिक विल कम। एंड व्हेन द फादर विल कम ही विल आस्क कि हुआ क्या था, और अगर उसका लॉजिक फिट बैठ गया, तो नाउ हिज IQ विल डेवलप, ही हैज़ इन हाई ऑर्डर थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग कहते हैं इसे, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, हाइपोथेसिस बना के रीजन करना, दिस विल डेवलप इन दिस स्टेज। होप यू एंजॉय प्याजे के ऊपर ही छोटा सा लेक्चर। भाई मुझे बहुत अच्छे से याद है, आई कैन टेल यू द नेम विदाउट सीइंग। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है थर्ड, है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल फोर्थ, सेकेंड है प्री ऑपरेशनल, सबसे ऊपर है सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर में रिफ्लेक्सेस, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, एंड द लास्ट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, you should also remember. So this is basically development of the brain. I hope this is clear. And I already told you in advance कि भाई पेशेंस लेके बैठना, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी लॉन्ग। क्यों होने वाला है, क्योंकि दिस थिंग नीड टाइम, ये टाइम कंज्यूमिंग है, पूरी लाइफ काम आने वाली चीज़ है इस चैप्टर में। वैसे तो हर चैप्टर में ही है ऐसा कौन सा चैप्टर जिसमें नहीं है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट अटैचमेंट थ्योरी, एंड आपकी बुक के अंदर जो अटैचमेंट थ्योरी है वो हार्लो एंड हार्लो की है। ओके, सो इसको थोड़ा है ना बुक से पढ़ेंगे। देखो, वी आर मूविंग टूवर्ड द इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। सो बेबी और जो हम ह्यूमन हैं, वी आर बॉर्न एज सोशल क्रिएचर्स। ओके, इन्फेंसी से ही वी आर बॉर्न टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस, सोशल क्रिएचर है हम सब। सो दे द बेबी व्हेन दे आर बॉर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल द इन्फेंट स्टार्ट प्रिफरिंग फेमिलियर फेसेस। बच्चे अपने पेरेंट्स के ही मतलब फेसेस देखना चाहता है। स्टार्ट में वो क्या बोलता है, वो कू की आवाज़ निकालता है। व्हेन द चाइल्ड इज 2 मंथ ओल्ड, 1 मंथ ओल्ड, तो एक बच्चे एक छोटी सी प्यारी सी आवाज़ निकालेगा, कू की, कू, है ना। और वो क्या करेगा, गंगलिंग करेगा। बट जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, 6 से 8 साल का होगा, हिल स्टार्ट बैबलिंग, मामा पापा बाबा, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए वो ये बैबलिंग करेगा, ठीक है। अब जब भी बच्चा कोई न्यू फेस देखेगा, जैसे मदर के अलावा ही सीज द फेस ऑफ हिज और हर आंट, एकदम से न्यू न्यू, अब बच्चा क्या करेगा, एकदम से सहम जाएगा, डर जाएगा, ये कौन आ गया है, ठीक है, मेरी मम्मा इसे क्यों मिल रही है, बेबी विल थिंक, ठीक है। अगर आप वो कि उसको बच्चे को ले लेंगे तो बेबी विल क्राई, है ना। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे नहीं रोते, देखो अभी आपके दिमाग में यही होगा कि मैंने ऐसे बच्चा लिया था नहीं रोया, अभी उसका रीज़न भी बताओगे क्यों नहीं रोया वो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे रोते हैं जब कोई अननोन फेस उन्हें दिखता है। अब उन्हें लगेगा कि उनको उनके मदर से सेपरेट किया जा रहा है, ठीक है। अब क्या है कि दे आर बॉर्न विद सिक्योरिटी वाली थिंग्स के साथ पैदा हुए हैं वो। सो एकदम से जब उनका रीयूनियन होगा ना अपनी मदर के साथ, पेरेंट के साथ, केयर गिवर के साथ, तो वो खुश हो जाएंगे, उनको हक देंगे कि देखो फाइनली आई एम बैक, ठीक है, आपने मुझे क्यों भेजा इनके साथ। सो दीज आर द थिंग्स एंड क्वेश्चन दैट द बेबी विल स्टार्ट आस्किंग, ठीक है, अपनी भाषा भी। बट अगर मदर ने उसको वेलकम ढंग से नहीं किया, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी बच्चा कोई भी उसको लेगा ना, तो द चाइल्ड विल गो ईजीली टू दैट पर्सन। तो इट्स मोर और लेस डिपेंड ऑन द मदर कि मदर कितना वार्मली उसके मतलब जो वो बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है उसको रिस्पॉन्स करती है, राइट। अब क्या हुआ कि जो क्लोज इमोशनल बॉन्ड है बच्चे और केयर गिवर के बीच में, ठीक है, इसको हम कहते हैं अटैचमेंट। और ये कैसे डेवलप होता है, तो अंडरलाइन दिस और हाईलाइट कर लो द क्या हो रहा है ये, the close emotional bond of attachment that develop between an infant and their caregiver or parent is called attachment. And इसके लिए this is very important, Harlow and Harlow की study. Let's understand this from your book itself. So listen,
Baby monkeys were separated from their mother approximately 8 hours after the birth. बेबी मोंकी जब पैदा हुए उसके 8 घंटे के बाद उनको उनकी मदर से अलग कर दिया. द बेबी monkeys were placed in the experimental chambers and reared for 6 months. और उनको एक्सपेरिमेंट चैम्बर में डाल दिया और उनको रियर किया 6 महीने तक बाय सैरोगेट मदर. सैरोगेट मतलब सब्सटीट्यूट. सो वन मेड ऑफ एक था, एक जो सैरोगेट मदर थी वो वायर और क्लोथ की बनी थी, मतलब वायर से स्ट्रक्चर देके उस पर क्लोथ रैप कर दिया. नाउ हाफ द बेबी मोंकी वर फेड बाय द वायर मदर. आधे बेबी मंकीज को वायर मदर ने फीड किया, हाफ को क्लोथ मदर ने फीड किया. ठीक है, समझ रही हो? कुछ को वायर की मदद दे दी, कुछ को क्लोथ की. क्लॉथ मदर के अंदर मतलब कुछ वो लगा के बॉटल होती है ना जो जिससे बच्चों को पिलाते हैं, दैट बॉटल उसके अंदर फिक्स करके उनको मतलब फीड किया वायर मदर ने और क्लोथ मदर ने. अब रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर फेड बाय द वायर मदर और द क्लोथ मदर, द बेबी मंकी शोड अ प्रेफरेंस फॉर द क्लोथ मदर एंड स्पेंड अ लॉट मोर टाइम विद हर. अब चाहे उसको वायर की मदर ने फेड किया हो या फिर क्लोथ वाली मदर ने किया हो, तो बेबी मदर क्या करेंगे, वो क्लोथ वाली मदर के पास ज़्यादा रहेंगे और वायर वाली के साथ कम रहेंगे, चाहे उनको वो कुछ भी किया हो. अब स्टडी ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? द स्टडी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट दैट प्रोवाइडिंग नरिशमेंट और फीडिंग इज नॉट क्रूशियल फॉर अटैचमेंट. सिर्फ दूध पिलाना, फीड करना अटैचमेंट के लिए काफ़ी नहीं है, राइट? कॉन्टैक्ट, कंफर्ट इज इम्पॉर्टेंट. बच्चे को जहाँ कंफर्ट मिलेगा बच्चा उसके साथ अटैच होगा, रिमेंबर. सो यू मे नॉट सी यंग चिल्ड्रन हैव अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द फेवरेट टॉय और ब्लैंकेट. दिस नथिंग अनयूजुअल. कुछ अनयूजुअल नहीं है. द चिल्ड्रन नो दैट द ब्लैंकेट और द टॉय इज नॉट देयर मदर, येट इट प्रोवाइड देम कंफर्ट. क्योंकि उन्हें उनको उससे कंफर्ट मिल रहा था, दे वर हैप्पी विद द क्लोथ. अब क्या, जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होंगे, एज चिल्ड्रन ग्रो दे बिकम मोर श्योर ऑफ देमसेल्फ एंड देन दे विल अबेंडन दीज ऑब्जेक्ट. जब उन्हें अपने बारे में पता चलेगा तो वो इन ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे. अब इस एक्सपेरिमेंट को हार्लो एंड हार्लो ने किया था. एंड मैंने इसको बुक से क्यों पढ़ा है? क्योंकि ये मुझे बुक्स में काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ मिला. मतलब समटाइम योर बुक इज एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन सच अ मैनर दैट वंस यू विल रीड इट आपको एकदम याद हो जाती है वो चीज़ें. तो वैसे ही इसमें बुक में बताया गया है ना. तो सम थिंग्स आर मेंट टू बी रिड फ्रॉम बुक. तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि ह्यूमन बॉडी भी है, जो ह्यूमन बेबीज़ हैं भाई वो भी ऐसी अटैचमेंट बनाते हैं जो मतलब मंकीज़ के किड्स ने बनाया है, राइट? जो उनको ज़्यादा प्यार करेगा उसके साथ अटैचमेंट अच्छा हो जाएगा, राइट? और रेसिप्रोकल अटैचमेंट होता है हमारे केस में. तो सो एरिक एरिक्सन के बारे में अब थोड़ा समझते हैं. एरिक एरिक्सन. सो अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, इन्होंने भी अटैचमेंट के बारे में बताया. द फर्स्ट ईयर ऑफ अ लाइफ इज द की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट. पहला 1 साल सबसे इम्पॉर्टेंट है मदर और बच्चे के लिए अटैचमेंट डेवलप करने के लिए. लाइक आई हैव एक्चुअली सीन सम ऑफ माई कलीग्स जो साइकोलॉजी में थे, एंड जब उनके मतलब बच्चे हुए तो दे एक्चुअली क्विट देयर जॉब टू स्पेंड 1 ईयर विद देयर किड. क्यों? क्योंकि द अटैचमेंट इज़ रियली क्रूशियल, है ना. जब हम इस साइकोलॉजी को डिटेल में पढ़ते हैं देन हम इन चीज़ों को ना अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करने लगते हैं. दिस इज़ द ब्यूटी. सो द फर्स्ट ईयर ऑफ अ लाइफ इज़ द की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट. इट रिप्रेजेंट द स्टेज ऑफ डेवलपिंग ट्रस्ट और मिसट्रस्ट. एक है ना, इनकी एरिक एरिक्सन हैज़ गिवन वर्च्यू एंड डिफरेंट स्टेजेस. तो फर्स्ट स्टेज इज ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट. A sense of trust is built on the feeling of physical comfort, which build an expectation of the world as secure and good place. अगर बच्चे को comfort मिलेगा तो उसे लगेगा ये world कितना secured है, कितना अच्छा है. An infant sense of trust is developed by responsive and sensitive parenting. और बच्चे को अगर उसके पेरेंट्स हैं रिस्पॉन्सिव होंगे और सेंसिटिव होंगे तो बच्चे क्या करेगा, ही विल ट्रस्ट द पेरेंट्स मोर, राइट? सो इफ़ द पेरेंट्स आर सेंसिटिव एंड अफेक्शनेट और एक्सेप्ट करेंगे बच्चे को, तो बच्चा क्या करेगा, खुश खुश रहेगा. अगर उसको मतलब रिजेक्ट करेंगे और उसको ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे तो देयर विल बी लाइक क्राइसिस. बच्चा क्या करेगा, प्रॉब्लम, उसको मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा. उसको लगेगा अगर वो रोएगा तो उसके पेरेंट्स आएंगे ही नहीं, राइट? तो ये क्या होता है कि कभी कभी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव होते हैं. फर्स्ट ईयर में when they get baby they are not ready to accept that baby, they show dissatisfaction. बच्चे में फॉल्ट निकालते हैं लाइक. तो इससे क्या होता है, इससे सेल्फ डाउट आता है बच्चे को.
उसको लगता है कि क्या मैं मतलब प्रॉब्लम हूँ, है ना। एक छोटा सा बच्चा मतलब इस तरह की सेल्फ डाउट आ रहा है उस बच्चे को। तो सिक्योरली अटैच इन्फेंट जो है वो जब भी उनको उसके पेरेंट्स उठाएंगे ना, दे विल रिस्पॉन्स पॉजिटिवली, पूरी लाइफ वो खुश रहेंगे, दे विल हैव अ बेटर डेवलपमेंट। उनको सब एनजाइटी होगी जब उनको उनके पेरेंट्स से अलग किया जाएगा, बट सम पेरेंट्स क्या होते हैं, जब उनको अलग किया जाता है मतलब बच्चे को अलग किया जाता है उन पेरेंट्स से, तो बच्चे अपसेट ही नहीं होते, है ना, वो बल्कि खुश हो जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी है ना। तो दो थ्योरी पढ़ी हमने इसके अंदर, इमोशंस के अंदर, हार्लो एंड हार्लो की मॉन्की स्टडी। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन राइट दिस 2 वर्ड्स ओनली। एंड एरिक एरिक्सन की थ्योरी ये वाली, यू कैन पोज एंड अगेन यू कैन नोट। क्लोथ ओवर वायर, है ना, वो कंफर्ट को वो करेंगे, हाफ मंकी, वायर के साथ गए, हाफ कंफर्ट के साथ गए, क्लोथ के साथ गए। एंड एरिक एरिक्सन, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एंड वर्च्यू के डेवलप किया उन्होंने। क्राइसिस आए, देखो यहाँ पे ना एक वर्ड लिख लेना, क्राइसिस। एरिक एरिक्सन की थ्योरी में क्राइसिस वाज सेल्फ डाउट। तो अभी हमने क्या किया, हमने ना एक्चुअल में हम 3 स्टेजेस कवर कर चुके हैं, ठीक है। इन्फेंसी और चाइल्डहुड को हमने एक साथ ही पढ़ा है। इन्फेंसी हम पढ़ चुके हैं ना, और प्री नेटल पीरियड। तो हमने कौन कौन से पीरियड यहाँ पे कवर कर लिया है, लेफ्ट द स्पेस फॉर दिस पर्पज ओनली। फर्स्ट वी लर्न अबाउट प्री नेटल। एक्टिव रिकॉल करो, कितने वीक्स का था, 40 वीक्स का था, राइट। और क्या था प्री नेटल में, आपको पता होगा, वो एक वर्ड जो मैंने कहा था कि आपको थोड़ा सा याद रखना है ना, वो टी से शुरू होता है। डू यू रिमेंबर दैट वर्ड, देख लो एक बार। टेराटोजन। टेराटोजन क्या होता है, एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रही है, राइट। तो देयर इज प्री नेटल पीरियड में देयर इज टेराटोजन, दिस वर्ड यू नीड टू रिमेंबर, स्टिकी नोट्स। सेकेंड इज बेसिकली, कौन सा पीरियड आया उसके बाद, हाँ, इन्फेंसी, 2 ईयर्स तक, है ना। फिर देन वी लर्न अबाउट चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में हमने किसके बारे में पढ़ा, पियाजे की थ्योरी पढ़ी हमने, उसमें स्टेजेस पढ़ी पियाजे की, है ना। कौन कौन सी थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, है ना। वो 4 स्टेजेस है, वो 4 स्टेजेस यू शुड रिमेंबर। अच्छा, पियाजे ने अपने खुद के बच्चों पे स्टडी करी, अपने खुद के ऑन किड्स के ऊपर। उसके बाद व्हाट वी लर्न, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वी लर्न अबाउट, कुछ नहीं पढ़ा, अब आगे पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ा है हमने, एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी है, और हार्लो की अटैचमेंट थ्योरी पढ़ी है। दिस इज क्वेश्चन ऑन अटैचमेंट, अभी आपके है इसमें क्वेश्चन, यू विल एबल टू आंसर दैट नाउ। ना लेट्स मूव टूवर्ड योर एज, दैट इज एडोलेसेंस के ऊपर चलो पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। यू रीड इट योर सेल्फ, यहाँ पे है ना बच्चों के बारे में ही लिखा हुआ है,